Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. The most abundant substance on the earth is water. All living beings need water for various purposes. Human beings need water for drinking, bathing, sanitation, washing, cooking, etc. Our body needs water for digestion, functioning of cells, internal cleansing, and oxygen circulation. The animal kingdom also needs water for the same. Plants and aquatic life too cannot exist without water. In short, there would be no life on the earth without water. अर्थ में वाटर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सभी लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत होती है. ह्यूमन बीइंग्स वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए करते हैं. और हमारी बॉडी को भी वाटर की ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए, जो सेल्स के फंक्शन हैं उनके लिए, इंटरनल क्लींजिंग के लिए और ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए. और जो एनिमल्स हैं उन्हें भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही ज़रूरत होती है. प्लांट्स और एक्वाटिक लाइफ जो पानी में रहते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, वो भी विदाउट वाटर नहीं रह सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं. विदाउट वाटर के बिना उनकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं है. Impurities in water. You know that more than 70% of Earth's surface is covered with water, but only about 3% of Earth's water in fresh water. We get water from rivers, lakes, oceans. This water often contains sand, clay, germs, etc., making it unfit for drinking. The presence of these substances in water is called impurities. Types of impurities. Soluble impurities cannot be seen like salt as it dissolves in water. Second, insoluble impurities can be seen like sand as it does not dissolve in water. Third, bacteria and virus. आप लोगों को मालूम है कि वाटर 70% वाटर और सरफेस में है, बट ओनली 3% जो वाटर है वह ही फ्रेश वाटर है, जो कि रिवर्स, लेक्स और ओशन में है. जो वाटर है उसमें सैंड, क्ले, जम्स बहुत सारे कंटेन्स होते हैं जो कि अनफिट हैं, पीने के लिए, पीने के पानी के लिए नहीं हैं. तो जिसमें सैंड, क्ले, जम्स होते हैं, वाटर में जो ये सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं उन्हें इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है. ऐसे 3 टाइप्स के इम्प्योरिटीज़ होते हैं. एक सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल और बैक्टीरिया और वायरस. सॉल्यूबल मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट. इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो पानी में घुलते नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उसे इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं. और बैक्टीरिया और वायरस, ये सारे इम्प्योरिटीज़ के टाइप हैं. Remove impurities from water. There are different methods to remove soluble and insoluble impurities from water. To remove insoluble impurities from water. Insoluble impurities are removed by filtration or sedimentation. तो वाटर से impurities को रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड है. इनसॉल्युबल impurities को filtration और sedimentation से अलग किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है. The process to separate the solids from liquids by passing through a filter is filtration. This is usually done using a filter paper. Filter paper is a special type of paper with minute pores that allow only the liquid to pass through. The liquid passed through is called filtrate, and the dissolved solid particles left on the filter paper are called residue. फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है. फिल्टर से उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो. इसमें एक फ़िल्टर पेपर होता है जो एक स्पेशल टाइप का पेपर है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो खाली अलाउ करते हैं लिक्विड को पास करने के लिए. इसमें लिक्विड पास हो जाता है और लिक्विड
जो पास होता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स जो फिल्टर पेपर में बच जाते हैं उसे रेसिड्यू कहते हैं। Filtration and decantation. Sedimentation process is used in the purification of liquid from solid particles when they are left for some time. In this method, the mixture is allowed to stand for some time so that the heavier particles settle at the bottom of the liquid. After the sediments settle at the bottom, the relatively clear liquid is then separated by a process called decantation. It is the process of transferring the clear liquid standing above sediment carefully into another container using a glass rod. Sedimentation ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड प्यूरिफाई हो जाता है सॉलिड पार्टिकल्स से, और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वह बच जाते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, इस मेथड में वाटर और सैंड दोनों का मिक्सचर है। अब थोड़ी देर बाद आप उसे ऐसे ही रख दीजिए, तो आप देखोगे कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, सैंड हैं, वह क्या हो जाते हैं, बॉटम में सेटल हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, और लिक्विड ऊपर होता है। और फिर उसके बाद आप इस लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो डिकेंटेशन की प्रोसेस से। इस प्रोसेस में आप जो लिक्विड है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वह सेटल हो गया है, और जो लिक्विड है वह दूसरे कंटेनर में आप उसको डाल सकते हो केयरफुली। तो ये प्रोसेस क्या है, डिकेंटेशन। Remove soluble impurities. The soluble impurities are removed by evaporation and distillation. Evaporation. Water containing soluble impurities such as sugar or salt is heated for long time. The water evaporates into steam, leaving behind the salt or sugar. Soluble impurities जो होती हैं, जो वाटर में घुल जाती हैं, ऐसी impurities ये एवापोरेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिमूव होती हैं। एवापोरेशन जो है वह वाटर में से सॉल्ट या शुगर को रिमूव कर सकते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो वाटर है उसमें शुगर या सॉल्ट है। अब उसे हीट किया जाए, लॉन्ग टाइम के लिए उसे हीट किया जाए, तो जो वाटर होगा वो एवापोरेट्स होगा, और जब वाटर एवापोरेट्स हो गया तो क्या बचेगा, नीचे सॉल्ट या फिर शुगर बच जाएगी। तो इस मेथड से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। Distillation. Another method used to separate impurities from solution, water and impurities is distillation. In this process, the solution is boiled in the flask. The hot vapors that form pass through a tube which is fitted into a condenser. The water circulating in the condenser cools the vapors. The liquid obtained is called the distillate, and it is collected in a clean container. This water is called distilled water, which is the purest form of water. The impurities are left behind in the flask. Distillation की प्रोसेस से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस में सॉल्यूशन को फ्लास्क में बॉईल करते हैं और फिर वेपर्स फॉर्म होते हैं। वेपर्स फॉर्म होने की वजह से वह एक ट्यूब के द्वारा, एक ट्यूब होती है जिसे कंडेंसर कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो कंडेंसर फिट करके उसमें वाटर सर्कुलेटिंग होता है। उस कंडेंसर जब कूल होते हैं, वेपर्स जब कूल होते हैं तो वो उस कंडेंसर में सर्कुलेट होते रहते हैं, और जो लिक्विड मिलता है उसे डिस्टिलेट कहा जाता है, जो क्लीन कंटेनर में कलेक्ट किया हुआ है। ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वह फ्लास्क में लेफ्ट मीन्स बच जाएगी, और जो प्योर वाटर है वह क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। Purification of drinking water. The water used for drinking should be clean and pure.
Many diseases are caused by drinking unclean water. Waterborne disease like cholera, jaundice, dysentery, etc. is very common and may take serious turn. वाटर जो हम यूज़ करते हैं पीने के लिए वह एकदम क्लीन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अगर हम अनक्लीन वाटर पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो उससे डिसीज़ होने का खतरा होता है। वाटर बॉर्न डिसीज़ जो है जैसे कि कॉलेरा, जॉन्डिस, डिसेंट्री, ये सब वाटर बॉर्न डिसीज़ है जो वाटर गंदे होने के कारण होता है। तो ये क्या है, एक कॉमन और सीरियस टर्न हो जाता है, मीन्स कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है इसकी वजह से। जो डिस्टिल वाटर है वह यूज़ किया जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, मेडिसिन बनाने में और कार बैटरीज में डिस्टिल वाटर का यूज़ होता है। Following ways can be used to purify drinking water: boiling. The most common method to purify water from municipal system, lakes, streams and wells is boiling. Water should be boiled for 10 minutes to kill the germs. वाटर को प्यूरीफाई करने का कॉमन मेथड क्या है? बॉइलिंग। मीन्स पानी को बॉईल करके हम या लेक्स या स्ट्रीम या वेल्स के जो पानी हैं उसको हम बॉईल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो वाटर है उसको हम 10 मिनट्स तक बॉईल करके उसके जो अंदर जर्म्स होते हैं वह मर जाते हैं और वाटर प्यूरीफाई हो जाता है। ये एक कॉमन मेथड है। केमिकल ट्रीटमेंट, अनदर मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर विच इज़ क्वाइट इफेक्टिव एंड सिंपल is by using chemicals such as potassium permanganate, chlorine tablets and iodine can purify water. Mix the chlorine into water and then wait for 30 minutes before using it. Potassium permanganate crystal are added to water to kill germs. अब कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जिसके कारण हम वाटर को प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। वह एक सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड है। केमिकल को हम पानी में डाल करके वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे केमिकल जैसे है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन की टैबलेट, आयोडीन, इससे वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। वाटर में क्लोरीन की टैबलेट डाल करके उसे 30 मिनट्स तक का वेट कीजिए यूज़ करने से पहले। और पोटेशियम परमैंगनेट्स जो है वह वाटर में ऐड किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए, जिससे वाटर प्यूरिफाई हो जाता है।